Okay. So, today, activity that I want to get done is I want you all to write down when we started the program. Okay. What was your thought? क्या आपका motive था, agenda था? What was the thought that got you to this program? I just want you all to write it in short, maybe bullet points, whatever, जो भी था, जो भी आपका purpose था, coming on board to the program. Just write it down in short. You can write in detail, you can write in bullets. What was it you were looking for when you got on board on the program? Your expectations maybe कि इस प्रोग्राम पे आके आपकी लाइफस्टाइल या आपके हेल्थ इश्यूज जो भी थे किस तरह से आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो. Just a brief about that. Have you written down? Okay. Now, उसी के नीचे I want you to write down जो भी आपके expectations थे, उम्मीदें थी. What do you think in this 1 month? How far you think you have come? How far you think you have achieved? How far you think you have been good on the program? How much you think you have understood the gist of the program? How good do you think have you fared until now? If you are done writing, just next to it or below it, I want you to write the flip side. क्या चीजें थी जो आपने सोचा था बट आप अब तक नहीं कर पाए एंड द रीजन. कोई ऐसी चीज which you expected के I would be able to do it easily but then you realized कि no, this is not working out for you, it's not happening, जो भी reason होगा उसका वो reason भी mention करोगे. Okay, now since only you are three of you, I want you all to read it out, starting with Yasha, then Dawn, and then Sabah. Read it out.
So before coming to the program, I had thought that I was wanting to overcome my fears and be more happier, not being worrying so much all the time. Wanted a better perspective, or wanted to look forward to the day um, with a bit of glimmer, ki everything is good, but rather it's always something that I'm worrying about, or then I I wanted to be happy on a daily basis without getting worried too much or being in fear all the time. कि कुछ Okay. आया हो रहा है, all that. Mhm. But from organizing a bit of my diet and focusing, learning about what I have understood so far from your description regarding food, I've become a bit conscious, and my buys are become conscious. And somewhere I feel that in this past 1 month, I have started sleeping better in the night, though I am not I'm not working very hard towards making that diet thing, I'm supposed to have a lot of fat or protein. But somewhere down the line, a bit of this organization, which is that organizing that I'm doing on a very small scale, is helping. Plus I'm sleeping a little better. Then what I'm not happy about is that I'm not being disciplined about the diet. Mhm. uh, and even so even if I go out, um, if suppose I used to have a larger portion of sweet or a larger portion of any kind of food, I have consciously cut it down to like quite a lot. That has come down a lot. I matlab, it's just like a reminder every time ki okay, I'm not going to have that much, but just a bit of it. Other than that, what I'm not happy about is that I'm not very disciplined, and my eating habits are such that since I'm having ghee in the morning or any which ways, I have a lot of gaps between my meals. So if I've had breakfast in the morning, then lunch becomes very difficult for me. Around 6, 7 o'clock, then I get these hungry pangs, and then I eat. Then I want to eat out. Then I want to eat, which is very tempting, or something. Then I give it, but not very much. Like even if I'm eating out, I'm making is uh, salad based with proteins. Um, it's from a good place where they are conscious about making the food also. Uh, Mhm. yeah, being more disciplined about my food is becoming like I would want to become very, very disciplined about it. Okay. So this was what you expected, and how did you fare? And things which did not turn out are like you're not able to include more fat and protein. More fat and more protein in my food. Fat, I'm easy. I'm okay with the fat part, as in butter, ghee, cheese, paneer. Not cheese, but paneer. Yes, but I'm getting bored of paneer now, so it's becoming a task for me to eat that now. But otherwise, so it's okay. Yeah, protein has been a thing. Non-vegetarian food I really cannot consume at that much, meaning it I just can't go beyond one piece of chicken boneless. Even fish is like one piece of fish and I'm done. Mhm. Other than that, egg and mutton though is out of question for me. But in veg, I try and have a lot of protein like legumes or lentils, like chole or mixed sprout. ठीक है. I got it. I got it. चलेगा. Now let's move on to Dawn. Tell me, Dawn. Okay. The reason I joined this program is because we were a part of the program number one, in which we were told about portions. So I think I had done well in that. So I was pretty proud of myself. So I thought that, okay, fine, portions ho raha hai. Let's get to know what exactly in terms of food, like, what are the food groups that we should focus on. That was one thing. And there's always, I know Farah since quite some time. Obviously, I've been disconnected in between, but I know that she's a taskmaster. So I know that even if I go somewhere astray, she'll get you back on track. So that was one thing. So there's a monitoring by someone who's done, which is done. So I know somewhere I'll be on track. So that was one thing I joined the program. So we'll continue from phase one to phase two. Expectation versus reality was
I think I'm doing well. But yes, of course, like Yasha said, there are these points in which Ask me. my carbs, I just don't understand. नहीं Like कर sometimes I सकते. like this rice and chapati is something that's been a part of the staple diet. So, yeah, first of all, I'm very happy that I can eat it. But then the moment I put it into the DRG, I realized that, oh shit, my GL is going high. So that's one thing. I'm very, very happy because in terms of the protein intake, I'm eating the things I love. And the things that I've read is that if you it's what you crave is what you eat actually. So if I eat a lot of sweets, I've understood I'll crave that. So now it's become ulta. So it's like I crave because I'm eating chicken and I'm eating stuff like that. So I crave something that. So I don't crave sweets, I don't crave chips. वो सब कुछ नहीं है. So that's a good thing I feel. So I've understood that what that person has said is absolutely true. It's what you eat is what you crave. So I'm craving good, so I'm happy about that. Only what GL, I don't know. It's the rice and the chapati goes haywire. That's the only thing. Then, yeah, my carbs is an issue that even I know. And I think it's because of this. The tough part is that meal planning. It's a lot of effort. Sometimes I feel like, oh God, it's so tiring at the end of the day. And then, you have to literally sit and think, कि ये क्या है, वो क्या है, and all. Meal Going out, planning, meal in the planning sense as well. like you have told us that you have to prep. अगर otherwise what will happen is जो सामने दिखता है वही खाएंगे. And that's absolutely true. ये meal prepping and shopping is a headache. Okay, Like I tell me, understand अभी जो खा रहे हो क्या उसकी खरीदारी नहीं करते हो? वो भी तो बाहर करते से हैं. लेके ही आते हाँ वो तो सही बात है. But then these things like I've understood this moong dal chila and all gives a little lesser GL. It's much better. It'll keep you full for a long period of time. ये सब अभी बनाना उसका हो. Okay, for okay. me oats is a faster option. That is one thing. So options of food, and there are a lot of things like yogurt and a couple of things which are good like cucumber and I don't know what all. There are a couple of other things which is really good, but unfortunately I can't consume that. Being an asthmatic, there are a few things that I really can't consume. I would love to have a banana, but I can't have it. I would love to have yogurt so much, but the moment I start in the next half day, I'm not well. So sometimes I feel that's my own constraints. I mean, that's the way probably I'm built. I know that I get upper respiratory tract infections very soon. That's one thing. But I think only the tough part for me is like that planning. I'm happy if somebody does it for me. So then, since my mom is very motivated for protein now, because she is not motivated, I irritate her basically because then she says, yeah, you will start with your protein thing. So she's getting that on track. So since she monitors and she does a lot of my work, it's good. But then the moment she doesn't do anything, then there's nothing. Okay, fine. I'm Okay, happy to an extent, yes. fine. Coming to Savon. क्या है बातों में दे दो. One second, huh? I don't understand. You can hear me now? Yeah. Acha. So, why I joined this program was since basically I was suffering from, I was just out of a disease, an autoimmune disease. So basically, I joined to get better perspective about, a wholesome lifestyle and a better, diet and good food habits. Basically, I was looking for that. And also, obviously, I thought that, in the process, I'll lose some weight. Because I've not been working out. So I thought, ke chalo, it'll help me somewhere. Uh, so, what I've understood about the program is, I'm sorry, I've not been able to follow it is only because I have my schedule these days past, the past January month has been very, very, I've been very busy. So planning has not been happening at all. I am just not been, I told you the other day also. Or दूसरा thing is कि I have not been able to whatever comes in my hand, I just eat. I'm not planning at all. So I know that, what I should be eating. वो है दिमाग में. I know it very well. कि I know I should not be having this. I should not be having that. But I am not able to plan first.
सो इतना प्रोटीन कार्ब्स थोड़ा ज्यादा ही जा रहा है. I am not eating junk that's there. I'm not eating outside food much, except for on weekends sometimes. But fat, I have not been taking enough of fat. That is for sure. And दूसरा ये है कि filling in DRJ is a gets a real task for me. I am not good at that. That is the biggest task. What is Filling the that what is the problem DRJ. in filling the DRJ? मतलब challenge मतलब क्या? पूरा दिन चैलेंज वही है कि बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग सो आई डोंट नो मतलब दिन भर में आई हैव बीन ईटिंग व्हाटएवर एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द वेइंग द फूड दैट गेट्स टू मच फॉर मी थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाता है बिकॉज हर बार आई ईट एंड देन आई फॉरगेट दैट आई हैव नॉट वेड इट so I can, as a DRGM, I can put it like I have like a bowl of this. But वो कितना ग्राम वो सब I am not able to put. So if I've had like 2 eggs, I can write 2 eggs. But अगर वो ग्राम में है बहुत सारी चीजें जैसे उसमें बहुत सारी चीजें like if I'm having some सब्जी so सब्जी में अलग अलग like you said कि अलग अलग डालना है तो वो नहीं हो पा रहा है. तो And अलग end अलग अगर सब्जियों में अलग अलग मेंशन करना है तो वो तो ऑलरेडी आपको सिर्फ टाइप करना है, वो अपने आप ड्रॉप डाउन में आ जाता है कि आपके कौन सी सब्जी है. यू डोंट हैव टू इवन सर्च. अगर आपने सपोज कॉलीफ्लावर खाया है, यू जस्ट राइट CAULI, तो हाँ अपने आप ही आ जाएगा. बट यू वो डोंट इवन वेइंग हैव टू लुक फॉर थिंग्स. वो नहीं अपने आप ही पॉप अप हो जाता है उसमें. ओके, सो that- समिंग अप, हम सब एक ना एक एजेंडा लेके आए थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. अब हम सारे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में. वी वर स्ट्रगलिंग विद सर्टेन हेल्थ इश्यूज, ऑल ऑफ अस, एट सम और द अदर लेवल. हमारा एजेंडा सबका यही था, टू इम्प्रूविंग एंड बेटरिंग आवर हेल्थ. ओके, यहाँ पे कुछ सीखा है, सबको कुछ ना कुछ समझ में आया है, कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं. ओके, सो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं. Discussion about habit formation. The entire gist of the program, Wholesome Habits, is forming new habits. Okay, so forming new habits is not easy. Okay, आदत क्या होती है? अभी जैसे Dawn said कि porridge is easier option for me. Sabha said कि weighing food is a task for her. क्यों? क्योंकि कभी किया नहीं है ना. खाना कौन मेजर करके खाया है? हमने घर में किसी को देखा है मेजर करके खाते हुए? पॉरेज इजी इसीलिए, पैकेट खोलना है फटाक से, उसको 2 मिनट इंस्टेंटली पकता है वो. इट्स लाइक एन इंस्टेंट नूडल. ओके, वहीं अगर आपको बेसन का चीला बनाना है तो आपको दाल भी भिगानी है, उसको पीसना है, प्लस उसको उसमें वेजिटेबल्स ऐड करना है, प्लस उसको तवे पे बनाना है. सो फॉर्मिंग दैट हैबिट इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम. ओके, और हैबिट आसान कब लगती है? जब आपका ब्रेन आपको ये यू कैन से कंडीशन कर देता है कि ओके नाउ ये ऐसा ये सिचुएशन है तो मुझे ये करना है फटाक से. अभी जैसे भूख लगी है, प्लेट में खाना डाला और खा लिया. आर ब्रेन इज कंडीशन लाइक दैट. प्लेट में खाना डाला, खा लिया, प्लेट में खाना डाला, खा लिया. हमारा ब्रेन इस चीज के लिए कंडीशन नहीं है कि भूख लगी है तो आप पहले वेइंग स्केल लेके आओगे और फिर आप उसमें खाना डाल के खाना मेजर करोगे और फिर खाना खाओगे. सो ब्रेन को वो चीज पे कंडीशन करने के लिए टाइम लगेगा. अब वो टाइम लगना कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सबको आप सिर्फ एक चीज मेरी ध्यान रखना कि आप जहां पहुंचना चाहते हो वो एक गोल है. ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई विथ योर गोल. जब तक आप उस गोल से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होगे आप उस गोल पे नहीं पहुंच पाओगे. आई गिव यू अ वेरी layman example. Like, सपोज आई एम अ वेरी बैड स्विमर और आई एम हाइड्रोफोबिक, मुझे पानी से डर लगता है. ठीक है, और मेरा लाइफ का गोल क्या है कि मुझे ओलंपिक्स में जाके स्विमिंग में मेडल जीतना है. सो माई आइडेंटिटी इज अ हाइड्रोफोबिक पर्सन जो पानी से डरता है, या प्रोबेबली आई एम वेरी बैड एट स्विमिंग. और मेरा गोल क्या है कि मुझे ओलंपिक में मेडल जीतना है स्विमिंग में. सो डज माई आइडेंटिटी एंड माई गोल अलाइन विथ ईच अदर? इट डज नॉट. या तो मैं गोल चेंज कर लूं, मैं ओलंपिक में जाऊं,
मगर मैं वो स्पोर्ट करूं जिसमें मैं अच्छी हूं, फिर मैं स्विमिंग में नहीं जाऊं। या तो मैं अपना गोल चेंज कर लूं, या फिर मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करूं, जिसमें आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ गुड स्विमर। आई आई ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर। मैं अपने हाइड्रोफोबिया को ओवरकम करके आई लर्न स्विमिंग एंड आई स्टार्ट टू गेट बेटर एट इट, so that someday I reach my goal. Now you understand what is your identity. Yasha, if you wanted to be happy, if you wanted to be more less worried in the day, if you wanted to be free of unnecessary thought processes going in your mind, okay, that was your identity because you were worried like that and your goal was not to be like that. So now अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। अगर आपने गोल ही चेंज कर दिया, सो दैट द पर्पस ऑफ कमिंग ऑन द प्रोग्राम इज नॉट सॉल्व। If you come to the nutrition part of it, same thing. If you are wanting to get better at your food choices, if you are wanting to lose weight, if you are wanting to get rid of your metabolic disorders, if you're wanting to get rid of your insulin resistance, if you are wanting to get rid of any like, your respiratory tract issues or maybe your gut issues or whatever, ये आपका गोल है। और आपकी आइडेंटिटी क्या है कि मेरे लिए इतना सारा फैट खाना आसान नहीं है। I'm very bad at making food choices. I'm very bad at making meal preps. I'm very bad at organizing my meal timings and like getting things lined up so that when I want this goal, मेरा जो trajectory है that should lead to my goal, वो trajectory plan करने में ही I'm not good at that. So either you change your goal, then you don't wish what you are wishing, or you change your identity. चेंजिंग हैबिट्स इज नॉट इजी। एक महीने में नहीं होता है, किसी का भी नहीं हुआ है। मुझे भी टाइम लगा था। मेरे साथ भी वही होता था। मेरा जो किचन स्केल था वो किचन में ही रहता था और मेरे सामने ही रहता था। बट भूख लगती थी, प्लेट में खाना डाला, खा लिया, एंड देन आधा जब खाना खा लेते थे तब रियलाइज होता था अच्छा इसका वजन भी करना था। शुरू के 15-20 दिन ऐसे ही चले, बट देन ठीक है। उसके बाद आया वो देन क्या हुआ कि मैंने अमेजोन पे एक वो स्पून ढूंढा। स्पून में ही वो डिजिटल वो होता है। सो व्हेन आई डायरेक्टली पुट द स्पून, या स्पून में ही मैंने डाल लिया तो वहीं पे ही दाल का मेजरमेंट आ गया। सो आई स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि अगर मैं वो भूल जाऊंगी तो मैं एटलीस्ट वो डायरेक्टली स्पून पे ही मेरा मेजरमेंट आ जाएगा। सो आई फाउंड आउट वेज, आई फाउंड आउट टूल्स that could help me get closer to my goal. I haven't reached my goal yet, but I know I'm on the right path. I know what I am doing will definitely lead me to my goal someday. I will not change my identity. Sorry, I will not change my goal. I will change my identity. और आपका जो दिमाग है ना, वो ऐसी चीज होती है ना कि once I like just when started, जैसे 15-20 दिन तो I was confused. I did not know how, मतलब कैसे होगा, इतना फैट कैसे अचीव हो पाएगा, इतना प्रोटीन कैसे अचीव हो पाएगा। धीरे 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 चीजें थिंग्स स्टार्टेड फॉलोइंग इन प्लेस। उसके बाद जब 1 महीना 1.5 महीना हो गया, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स, तो ब्रेन में अपने आप ये चीज रजिस्टर होने लगती है। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग सो मच ऑफ फैट इन माय डाइट ऑन अ डेली बेसिस, मुझे जो एसिड रिफ्लक्स होते थे वो मेरे होना बंद हो गए। सो ब्रेन अपने आप कनेक्ट करता है। द डेज व्हेन आई यूज टू हैव लेस ऑफ फैट, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स जैसा फील होता था, या इनडाइजेशन, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फील होता था। डेज व्हेन आई यूज टू हैव लेसर प्रोटीन, उस दिन मेरे क्रेविंग्स बहुत हाई होते थे। सो ब्रेन अपने आप चीजों को कनेक्ट करता है, डॉट्स को कनेक्ट करता है। अपने आप समझ में आने लगा, ओके सो इफ आई एम फीलिंग हंग्री टू सून और वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट मीन्स मतलब आज मैंने प्रोटीन कम खाया इसीलिए मुझे ये हो रहा है। सो अपने आप ब्रेन रीजनिंग देता है। सो नाउ टुमारो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव माई एग्स ऑन माई प्लेट। उसके लिए मुझे अंडा रात में ही ऑर्डर कर देना है। उसके लिए मुझे सुबह में ही एग को बॉईल करके रखना है, सो दैट इवन इफ आई डोंट हैव टाइम, इवन इफ आई एम इन अ हरी, मेरे पास सुबह में सिर्फ 2 घंटे का पीरियड होता है जिसमें मुझे अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को प्रॉपर उसमें 1 घंटे 2 घंटे में मुझे अपना लंच और ब्रेकफास्ट को स्ट्रीमलाइन करना है।
बिकॉज उसके बाद मुझे टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ फटाफट खाना ही है, उसके बाद आई डोंट हैव द टाइम. सो आई हैव दीज 2 hours वेर इन आई मेक श्योर के डिनर का भी प्रेप करके रखूं, मैं लंच का पूरा रेडी करके रखूं, सो दैट आई डोंट वेट लंच टाइम पे, आई डोंट हैव टू कम होम एंड वेट एंड फॉर द लंच. और फटाफट ब्रेकफास्ट भी वही 2 घंटे में मुझे ब्रेकफास्ट करके जाना है, लंच का सब कुछ रेडी करके जाना है और डिनर का प्रेप करके रखना है. सो माई माइंड स्टार्टेड मेकिंग इट्स ओन प्लान, बिकॉज आई नो मेरे पास ये 9 से 11 का स्लॉट है, तो ये 9 से 11 में ही काम होगा मेरा. अब वो 9 से 11 में काम करने के लिए प्रीवियस नाइट मुझे प्रेप करना ही है, जो मुझे ऑर्डर करना है वो प्रीवियस नाइट ऑर्डर करना है, सो दैट मॉर्निंग इट इज ऑन द किचन प्लेटफॉर्म टू गेट इट डन, टू मेक इट रेडी टू ईट. So you will have to take that path. You will have to understand. Habit formation has various steps. You will have to follow all those steps. आप सिर्फ एक स्टेप पे खड़े होके सोचोगे एवरीथिंग विल स्ट्रीमलाइन ऑन इट्स ओन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. धीरे धीरे चीजें होती हैं. और ये जब आप करने लगोगे, आज वो मेरी आदत बन गई है, तो रात में सोने के पहले सारी मेरे ब्रेन में आई एम लाइक चेकिंग द लिस्ट. कल के लिए चिकन आ गया है, कल के लिए अंडा आ गया है, इज देयर इनफ घी एट होम, बटर खत्म हो गया है तो हैव आई बॉट द बटर. आई मेक इट अ पॉइंट व्हेन आई गो टू द मार्केट, मैं हमेशा बड़ा वाला बटर का ही पैकेट खरीदूं, सो दैट एवरी सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आई डोंट हैव टू रश टू द मार्केट टू बाय अ बटर. इज देयर इनफ चीज इन द फ्रिज. सो ये सारी है ना चेकलिस्ट मेरे ब्रेन में होती रहती है. इट्स नॉट दैट इजी फॉर एनी वन. आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, वट एवर, ऐसा नहीं है कि जो घर पे हैं उनको कम काम है, या जो बाहर रहते हैं वो ही ज्यादा बिजी होते हैं. आप घर पे हो या बाहर काम कर रहे हो, दिस इज योर पर्सनल टास्क. Dawn is lucky she has her mother who gets her food thing taken care of, but everyone doesn't. और आई एम श्योर उसकी मम्मी भी 100% नहीं कर सकती है. अगर उसकी मम्मी 50% कर रही है, सो 50% इज योर टास्क डन, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल टास्क. इफ यू डोंट डू इट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. It is simply not going to happen. You will have to take that step to get it done. Filling in the DRJ is just typing what you have eaten. You don't have to look, you don't have to search for it. अपने आप पॉप अप होता है. It is the most easiest way हमने फॉर्मुलेट किया है. आपको सिर्फ टाइप करना है, अपने आप पॉप अप होगा, और आपको मेजरमेंट्स लिखने हैं उसमें. हमेशा मेजरमेंट्स नहीं भी. अभी व्हेन आई वाज आउट फॉर लास्ट 15 days, मैं किचन स्केल तो नहीं लेके गई थी वहां पे. इन दैट केओस आई कुड नॉट हैव लाइक सबके बीच में मैं किचन स्केल रखूं और मैंने कितना चिकन खाया और कितना मटन खाया. आई वाज नॉट डूइंग दैट. बट सिंस आई हैड बीन डूइंग इट फॉर 3 odd months, आई न्यू कि मेरा प्लेट में जो चिकन है वो 100-150 ग्राम के बीच में है. एवरी मील 100-150 ग्राम के बीच में मैं चिकन खा रही हूँ. आई वॉज अवेयर ऑफ दैट. There were enough breads, there were kabus, there were parathas, there were pohas, there were pulaus, there were biryanis and everything. What not and what all. But I knew that I have to stay away from carbs. Not because I was following a diet, but I knew कि अगर मैं carbohydrate खाऊंगी मैं जल्दी थकूंगी, lethargy जल्दी आएगी. And I was there for a goal which needed a lot of physical labor. Going on Umrah, people know that it is a lot of physical challenge, a lot of physical work to do. You have to physically perform a lot of things over there. तो अगर मैं बहुत हैवी कार्ब लोडेड और इतना मीठा होता था हर खाने में, there used to be some sweet dish, at least 2 sweet dishes, not one sweet dish. Apart from that, खजूर होते थे, and then other puddings and chocolates and what all and what not. Everything was served in the buffet. But I consciously knew it कि अगर मैं इतना सारा शुगर लूंगी, I'll crash on the bed. Instead, I have to go to the masjid and I have to do ibadat and I have to perform there. So I have to keep my energy levels high. Energy level high रखने के लिए there should be enough fat and enough protein in my plate. So I had to make sure of all those things. If your plate is good in nutrition, if you know that आपने जो आपके बॉडी में डाला है वो सही और क्लीन फूड है, आपके हैप्पी हार्मोन्स वहीं से ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. You start getting contentment from that very moment. You know that what you have put inside your body is the right thing. That was the thing that was you were supposed to eat.
तो आपने एक अपना जो किला है वो तो आपने फतेह कर लिया। अब ये किला जब आप रोज फतेह करोगे, रोज आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, रोज आपको वो कंटेंटमेंट मिलेगा। ओके, आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई एम डूइंग द थिंग विच आई एम सपोज टू बी डूइंग विथ माई बॉडी, आई एम ऑन द राइट पाथ। क्या होगा? Your body will be releasing a lot of serotonin. It's going to give you a lot of happiness. It is going to give you a feeling of self love. It is going to give you a feeling of satisfaction. You'll be more peace, more at peace with your body, with your food choices. You will have much clarity of what you are doing, of whatever, of talking to people, much clarity of taking other decisions. Because you know कि एक major area जो है आपकी life का वो sorted है. Somewhere down the line, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, your body will start reflecting good results of the good things that you have been putting in your body. It is not an overnight task, and it is not an easy task, and it is not a task that can be delegated to someone else. I have a cook at home, but वो cook मेरे लिए grocery shopping नहीं करके लाएगी। वो कुक वही पकाएगी जो मैं उसको बता रही हूँ। If I leave it up to the cook, she will cook whatever she knows. But if I want to eat a certain kind of a meal, I will have to provide her with those good fats. I will have to make good, better oil का choices so that मेरा खाना वो अच्छे तेल में ही बने. I will have to do the grocery shopping of the stuff that I want to put it into my body. She will just stand on the stove and make it for me and give it to me. मेरा जो काम है वो तो मुझी को करना है. Nobody else can do that for me. सो यू हैव टू रियलाइज दिस। आज अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं जो आपने लिखे हैं अभी सबने, कि वो एरियाज जहां पे आपको लगा है कि यू आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, रिफ्लेक्ट करो, क्यों लैग कर रहे हो। आपके गोल और आपके आइडेंटिटी के बारे में सोचो। अगर ये आपका गोल है और उसमें कोई ना कोई हर्डल आ रहा है रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी, यू हैव टू स्टार्ट टू धीरे धीरे चेंज योर आइडेंटिटी. Start changing your mindset, the way you start planning your day out, the way you start thinking about food. I have known people जो जैन थे on this program, जो नॉनवेज खाना शुरू कर दिए, बिकॉज इवेंचुअली उनको ये समझ में आया कि अगर उनको क्लीन प्रोटीन खाना है विथ क्लीन फैट, उनको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा. दे मेड दैट चॉइस. इट वॉज नॉट ईजी. जिनके घर में अंडे का नाम नहीं लिया जाता, इमेजिन दैट पर्सन ईटिंग अंडा. अंडा इज नॉट इवन नॉन वेजिटेरियंस के लिए, इट्स नॉट अ वेरी इजी दिस थिंग, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग. लोगों को जनरली अंडा बहुत वो होता है, पीपल नॉट रियली लाइक द स्मेल ऑफ एग. But then they have started eating because once you realize that this is good for your body and this is the way you are going to achieve the goal, you will have to do it. उसका दूसरा रास्ता ये है कि फिर आप पैकेट वाले फूड्स के ऊपर डिपेंड हो. जैसे बहुत आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, people are having protein powders and making bodies. But I have already told you about the protein powder thing, the story behind it. Eventually that is going to give you the insulin spike. वही चीज जिससे हम बचना चाह रहे हैं. बहुत सी ये चीजें हाई प्रोटीन अवेलेबल है पैकेट में, जो बनी हुई पैक्ड मिलती है, आपको सिर्फ पैकेट खोल के खाना है. बहुत इजी है, वो हमारी सालों की पुरानी आदत है. भूख लगी, चिप्स का पैकेट खोला खा लिया. भूख लगी, मैगी का पैकेट खोला उबाला खा लिया. भूख लगी, कोई भी फरसान खोला खा लिया. भूख लगी, बिस्किट खोला खा लिया. तो ये हमारी सालों की हैबिट है जो बनी है. इसके लिए हमारा दिमाग सोचता नहीं है, इसके बारे में हमारी बॉडी भी लेजी नहीं होती है. अ बॉडी डजंट गेट लेजी. मेकिंग अ चीला इज डिफिकल्ट बट मेकिंग अ रोटी डजंट सीम टू बी डिफिकल्ट. व्हाई? क्योंकि सालों से रोटी बनाते आ रहे हैं ना. आटा भी गूंदना है, रोटी बेलना भी है, सेकना भी है. बट मेकिंग अ चीला लुक्स मोर डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज वी हैवंट बीन डूइंग दैट. हमारा ब्रेन इज नॉट कंडीशन टू डू दैट. रोटी ऐसा लगता है अरे 1 मिनट में बन जाएगी यार, अभी तो आटा तो गूंदा ही हुआ रखा है, 1 मिनट में रोटी बन जाएगी. बिकॉज सालों से यही खा रहे हैं, यही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं. आज अगर हमको चीला बनाना है या आज हमको अगर बेसन की रोटी बनानी है, मेरे फ्रिज में बेसन का आटा गूंदा हुआ रखा ही रहता है. बिकॉज आई नो कि अगर भूख लगेगी तो मुझे बेसन की ही रोटी खानी है, तो आई मुझे बेसन का आटा गूंद के रखना ही रखना है.
उसके लिए मेरे घर में बेसन होना ही चाहिए। सो वेरेवर मेरे घर पे आटा जब आता है साथ में बेसन भी आता है। एवरी टाइम देयर इज अ चेक इन द डब्बा। आटा खत्म हुआ है, बेसन भी खत्म हुआ है क्या, या अगर थोड़ा भी बेसन है तो थोड़ा सा और लाके रख दो। खत्म नहीं होना चाहिए बेसन। स्प्राउट्स खत्म नहीं होने चाहिए। घर में छोले के डब्बे में छोले होने ही चाहिए। अंडे के रैक में अंडा होना ही चाहिए। कल सुबह में पकाने के लिए चिकन, मटन, एग, पनीर, जो भी आपका फूड प्रेफरेंस है कल के लिए, वो होना ही चाहिए घर पे। ये आपका रात का सोने से पहले आपके ब्रेन में टिक होना ही चाहिए। डीआरजे भरा के नहीं आज का, अगर आज नहीं भरा है तो टुमारो इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सेंड द डीआरजे। डीआरजे नहीं भरोगे तो आप गेम में प्रो नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ प्रो एट दिस गेम। डीआरजे इज अ टूल दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट योर सेल्फ एट दैट नॉच के आप ऊपर से ऑब्जर्व करके ही अपने आप को है ना इस गेम में मेंटेन रख सकोगे। बट अगर आप अभी शुरुआती दौर पे ही, अगर जैसे हम स्कूल में नहीं लिखते हैं 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 2 का टेबल 10 बार, 3 का टेबल 10 बार, 4 का टेबल 10 बार, क्यों लिखते हैं? आज आपको कोई बोलेगा 5 8 आपको क्या लिखना पड़ेगा 5 8 40 होता है? यू नो 5 8 40 बिकॉज यू हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। डीआरजी का पर्पस ही वही है। अगर आप रोज बाहर एक सैंडविच खा रहे हो और आप रोज डीआरजे में एक सैंडविच लिख रहे हो, जब आप 2 साल बाद एक सैंडविच बाहर खाओगे आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज 360 कैलोरीज दैट आई एम ईटिंग इफ इट इज अ ब्रेड सैंडविच। व्हाट यू विल डू? अपने आप ऊपर से ब्रेड निकाल के एक कम से कम ऊपर वाला स्लाइस ब्रेड तो निकाल ही दोगे। आपको पता चल जाएगा वो ओके मैंने इसमें से 80 कैलोरी तो निकाल दी है कम से कम 360 में से। ब्रेन अपने आप वो कैलकुलेशन करता है। बट वो ब्रेन कैलकुलेशन कब करेगा? जब उसने वो मल्टीपल टाइम्स किया होगा, तब वो ब्रेन कैलकुलेशन करेगा। और वो पॉइंट पे पहुंचने के लिए ही डीआरजे बनाया गया है। सो नॉट फिलिंग द डीआरजे इज नॉट एन ऑप्शन। चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे चेंज करने आए हैं, अपने हैबिट्स को चेंज करने आए हैं, नए हैबिट फॉर्म करने आए हैं। वो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू हैंड होल्ड यू, आई एम हियर टू see through your challenges, and I'm here to give you solutions, but you will have to walk down that path. We all are hand holding each other. We all are walking down this path with each other. It will make the journey easier. But अगर आप हाथ छुड़ा के वहीं पीछे खड़े रह जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? वहीं रह जाओगे आप। जहां शुरू किया था वहीं रह जाओगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे ग्रुप में सिर्फ संगीता है जो परफॉर्म कर रही है, जिससे मैंने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। इंग्लिश उसे समझ में नहीं आती है बंदी को। जो बहुत सारे टर्म्स हैं जो मुझे उसे बाद में समझाने पड़ते हैं कि मैंने क्या बताया, वो मुझसे पूछती है सामने से कि मैम ये क्या बोला था। शी इज अ प्योर वेजिटेरियन। उसके बावजूद उसका डीआरजी देख के खुशी होती है क्योंकि एफर्ट दिखता है। शी इज सर्विंग द पर्पस ऑफ बीइंग ऑन द प्रोग्राम। उसने दिल पे लिया है प्रोग्राम, एक्चुअली वो सही बात, सही लफ्जों में। शी इज विलिंग टू मेक दैट चेंज इन हर लाइफ। तो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी योर सेल्फ there where you have imagined yourself, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो अब तक दिख नहीं रही है मुझे। शजर के डीआरजे में दिखती है हफ्ते में 2 बार, बाकी किसी के डीआरजे में नहीं दिखती है। सो गो दैट एक्स्ट्रा माइंड। आप अपने लिए कर रहे हो। सबके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, एक्स्ट्रा से भी ज्यादा कर लेते हैं कई बार तो। और फिर बाद में गुस्सा भी आता है कि कितना भी करो किसी के लिए कमी है। अपने लिए क्यों नहीं? अपने लिए करो, अपने आप को ज्यादा प्यार करो, अपने आप को ज्यादा अप्रिशिएट करो। अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना नहीं बोलेंगे इसे, दैट इज सेल्फ लव। लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, मेरी गारंटी है। कौन से पेपर पे लिख के देना है बोल दो, मैं लिख के दे देती हूँ। यू विल रीच देयर, बट एफर्ट डालो। 1 महीना हो गया है, कल भी मैंने बोला था सबको समझ में आ गया है कि क्या है। बट अब डर रहे हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि आगे बढ़ने में हैबिट फॉर्मेशन है। हैबिट फॉर्मेशन में मेहनत है। मेहनत से सबको डर लगता है। पुरानी आदतें
छोड़नी है, नई आदतें बनानी है, हर रोज कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो आप कर रहे हो ना, रिपीटेडली करते रहो। 1% भी इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो 30 दिन बाद आप 30% आगे होगे। Even if you're making 1% improvement every day, at the end of the month, you will be 30% ahead of what you are today, and it will be a remarkable difference. A remarkable difference, I tell you. So, आज के ज्ञान का कुछ असर होगा कल के डीआरजे पे? सबके डीआरजे आने चाहिए। Nobody is going to miss the DRJs now onwards. आप कितने भी बिजी हो, अपने लिए टाइम, आप अपने लिए नहीं टाइम निकालोगे तो किसके लिए टाइम निकालोगे? मुझे ये बताओ, किसके लिए टाइम निकालोगे? आई एम अ ट्रेनर, आई ट्रेन 45 50 women in a day, but if I don't do it for myself, is it even worth being a trainer? ये बात तो अब छोड़ दो कि अच्छा मैं अगर वर्कआउट नहीं करूंगी मैं मोटी हो जाऊंगी और मैं ट्रेनर जैसी दिखूंगी नहीं तो कौन मेरे पास आएगा, वो तो एक दूसरा ही एस्पेक्ट है। बट इफ आई एम अनहेल्दी, इफ आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द वे आई लुक, if I'm not happy about my health, if my body is aching and paining and I am not happy and you can say satisfied about my own health, is it even worth being a trainer if I don't do it for myself? अपने लिए नहीं, अगर मुझे अपने लिए रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा जाग के या सुबह में 1 घंटा जल्दी उठ के भी एक्सरसाइज करना, आई विल टेक दैट एफर्ट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मुझे जितना पता है अबाउट बीइंग अ ट्रेनर, उसका बेस्ट तो मैं अपने लिए रखूंगी ना, उसका बेस्ट मैं अपने लिए ही अप्लाई करूंगी। The best of my knowledge, I will apply it on my body. The best of your efforts, what you can put in for everybody else, the best of that effort you have to put it for your own self. And we are the women, we are the homemakers, we are the caretakers, we are the caregivers. We have to be the best of health, the best of mental health, physical health, emotional health. तभी तो हम अपने जो जिनको हम इतना प्यार करते हैं, जिनको हम सब कुछ देना चाहते हैं, उनको वो सब दे सकेंगे जो हमें देना है। कैसे हो पाएगा? आप अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का कैसे ध्यान रखोगे? फिल अप योर ग्लास एंड देन यू कैन पोर इन अदर्स। ठीक है? सो गोल, आइडेंटिटी, आपका गोल क्या है और आपकी आइडेंटिटी क्या है आज की डेट में, अभी लिखोगे आप। राइट नाउ एवरीबडी राइट, व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट इज योर आइडेंटिटी। वी विल रिव्यू दिस आफ्टर अ फ्यू डेज कि आपने अपने आइडेंटिटी में क्या चेंजेस लाए, हाउ फार वर यू एबल टू चेंज योर आइडेंटिटी so that you got even 1% closer to your goal. जो चीजें आपके लिए चैलेंज थी उसके पर आपने कितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। आज हम सबको लिखना है कि मेरे गोल की तरफ मुझे बढ़ने के लिए जो भी चैलेंज था उस पे मैं 1% कैसे वर्क करूं। काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। मेरा आज का फेवरेट डायलॉग हो गया आजकल। ओके, एंड ये वीक में आई विल बी टेकिंग द हडल्स एवरी डे, and I guess tomorrow I will be taking a huddle on cholesterols and triglycerides, understanding what are cholesterols, triglycerides कैसे बनते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत है, कितना डरने की जरूरत है, how scary they are. Okay, so it's going to be an important huddle. Insulin resistance का क्या connection है इन सब चीजों में? It's going to be a very important huddle, so please try and attend this huddle tomorrow. ओके, बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑब्वियसली इतना लंबा ब्रेक हो गया था। सो वो सारे लिंक्स हम कनेक्ट करेंगे तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मोर फैट एंड मोर प्रोटीन। मुझे आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, आपका ब्रेन सारी चीजें खुद अपने आप कनेक्ट करेगा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है, चलो एक फटाक से एक मेडिटेशन कर लें, इफ यू ऑल हैव टाइम। थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे, sitting up straight, pull your shoulders back, keep your chest lifted.
Try to relax your mind. बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में जो आ रहे हैं जा रहे हैं, शांत करेंगे सारे थॉट्स को। फोकस करेंगे ब्रीदिंग के ऊपर।